हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इज important here. What is the importance of biosphere reserve? There is a most important question here. What is the importance of biosphere reserve? The answer here, bioreserve is achieved a three interconnected function. There is a three interconnected function: conservation of development and logistics support. To the fulfill these functions, there is contain three interconnected zone. There is important here. The bioreserve achieve three interconnected function: conservation, development, and logistics support. To fulfill this function, there is contain three interconnected zone. And second, first point here, the core zone, it is a security protect the site for a conserving biologically diversity and monitoring to mammals is a disturbed ecosystem and undertaking non-destructive research and other low impact use like a education. The core zone, it is the security protect the site for a conserving biologically diversity and monitoring is a minimally disturbed ecosystem and undertaking non-destructive research and other low impact use like a education. The second point is important here. Buffer zone, it is a surrounding or adjoining there is a core area and is a use for the cooperative activities, is a compatible with the sound ecologically is a practice and including environmental education and creation, ecotourism and applied and basic research. The important, I repeat again, the buffer zone is a surrounding or adjoining the core area and it is used for a cooperative activities, is a compatible with the sound ecological practice, including environmental education and recreation, is a counterism and applied the basic research. And third point is here, transition is a development zone. It may be contain a diversity of agriculture activity, settlement and other use and is with a local community management agency. Scientists, NGOs, culture groups, economical interest and other stakeholder work together to manage there is a sustainably develop the areas as a resource, and thus the probability to manage biosphere reserve are important for preserving to the biologically diversity. There is an important point here. हमारा जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पर 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या महत्व है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाई गई उसका क्या महत्व है, क्यों बनाई गई, क्या है इसका कारण। कहते हैं अगर आंसर पे हम चर्चा करें तो जैव भंडार 3 परंपरा जुड़े कार्य अर्थात संरक्षण, विकास और रसद समर्थन को प्राप्त करते हैं और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उनमें 3 परंपरा जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। यानी देखा जाए तो इसके जो है जैव भंडार 3 परंपरा जुड़े कार्य करते हैं, संरक्षण का, विकास का और समर्थन का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट अगर इसके अंतर्गत बात करें तो कहते हैं कोर जोन एक जैविक विविधता का संरक्षण करता है और कम से कम अशांत पारितंत्र जो है निगरानी भी करता है। यानी जो अशांत है, जो नष्ट किए जा रहे हैं पारितंत्र, उसको निगरानी करता है और गैर विनाशकारी अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र जैसे अन्य काम प्रभाव वाले जो उपयोग के लिए सुरक्षित रूप से भी आरक्षित साइट है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि गैर विनाशकारी अनुसंधान और शिक्षा जैसे अन्य कम प्रभाव वाले उपयोग के लिए सुरक्षा रूप से जो है संरक्षण साइट के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो कहते हैं बफर जोन यह मुख्य क्षेत्र को घेरता या जोड़ता है।
यानी बफर जोन जो होती है ये मुख्य क्षेत्र को घेरता या जोड़ता है और पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, इको टूरिज्म और जो अनुपयुक्त और बुनियादी अनुसंधान सहित ध्वनि पारितंत्र प्रथाओं के साथ संगत सहकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है कि बफर जोन यह मुख्य क्षेत्र को घेरता या जोड़ता है और पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, इको टूरिज्म और अनुपयुक्त और जो बुनियादी अनुसंधान सहित ध्वनि पारितंत्र प्रथाओं के साथ संगत सहकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट यही कहता है कि संक्रमण विकास के क्षेत्र में कृषि गतिविधियां और बस्तियां और अन्य उपयोग की विविधता शामिल हो सकती है, जिसमें स्थानीय समुदाय प्रबंधन एजेंसियां, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठन, संस्कृति समूह, आर्थिक हित और अन्य हितधारक क्षेत्र के प्रबंधन और सतत विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। कहते हैं साधन क्या है, इस प्रकार की जैविक विविधता की संरक्षण के ठीक से प्रतिबंधित बायो रिजर्व महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी जैविक विविधताओं के संरक्षण के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व का भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसकी निगरानी हर एक क्षेत्र में होता है और हर एक क्षेत्र को निगरानी में रखता है, जिससे जो है गलत ना हो सके, जीव जंतु नष्ट ना हो सके। और ये सारे कार्य किसका काम है? बायोस्फीयर रिजर्व का। यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है हर एक चीज़ पर निगरानी रखती है कि कोई पेड़ पौधे के साथ, जीव जंतु के साथ नुकसान ना हो, और इसको जो है बहुत ही सख्त के साथ काम करने की आवश्यकता है, तभी जो है हमारा जीव जंतु सुरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पर हमने बायोस्फीयर रिजर्व की महत्ता के विषय में चर्चा की है, तो आप समझ गए होंगे कि जो इसका जो है हर क्षेत्र में जो है जीव जंतु में हो, पेड़ पौधों में हो, सबका संरक्षण करने में इसकी निगरानी रहती है। ठीक है, और आपको भी निगरानी करके रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और इसके लिए जो है आपको लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। साथ में अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आता है तो कमेंट भी करना मत भूलिए। कमेंट कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। ठीक है, तो इसमें तब पता लगेगा जब आप अच्छे बुरे को जो है मेरे साथ शेयर करोगे। इसलिए जो है सजेशन बॉक्स में आप सजेशन भी आप मुझे दे सकते हो कि मुझे और क्या बेटर करना चाहिए, आपको कौन सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सिलेबस जो है आपको सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके विषय में जो है आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, आपके जो 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी रखता है कि 9th क्लास में उनको सारे वीडियो मिलेगा, और जो 9th क्लास में है, जो 10th क्लास में जाएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 10th क्लास के जो है आने वाला समय में साइंस का वीडियो और सोशल का वीडियो भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि अगले साल में आप जब रहोगे तो बने रहोगे तभी आपको ये प्राप्त होगी। और बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। जब सेव करके रखोगे तभी जो है 10वीं क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और आप जो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोबाइल में सेव कीजिए।